نمبر 1 کوسچن ہے، پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ خواجہ ناظم الدین کے بعد غلام محمد اور سکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل تھے۔ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا؟ لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کب ہوا؟ 10 اگست 1947۔ 10 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس کراچی میں ہوا۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا صدر کون تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح۔ قیام پاکستان کے وقت قائد اعظم کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ کیا تھا؟ مہاجرین کی آبادکاری۔ مہاجرین کی آبادکاری کے لیے قائد اعظم نے کون سا فنڈ قائم کیا؟ ریلیف فنڈ۔ پاکستان کا قومی پرچم کس نے تیار کیا؟ امیر الدین قدوائی۔ امیر الدین قدوائی نے پاکستان کا قومی پرچم تیار کیا۔ قومی پرچم کو کب منظور کیا گیا؟ 11 اگست 1947 کو قومی پرچم کو منظور کیا گیا۔ پاکستان کا پہلا سکہ کب جاری کیا گیا؟ 3 جنوری 1948 کو پاکستان کا پہلا سکہ جاری کیا گیا۔ پاکستان کا پہلا سکہ نکل کا بنا ہوا تھا اور یہ برینڈلے نے ڈیزائن کیا تھا۔ قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب کیا؟ 1 جولائی 1948۔ قومی ترانہ کی دھن کس نے کمپوز کی؟ احمد جی چھاگلا۔ احمد جی چھاگلا نے 21 اگست 1949 کو قومی ترانہ کی دھن کمپوز کی۔ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے تحریر کیا؟ حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری نے 1952 میں پاکستان کا قومی ترانہ تحریر کیا۔ پاکستان کا قومی ترانہ اگست 1954 کو منظور کیا گیا اور اس کے ٹیون 80 سیکنڈ پر محیط ہے، 39 ورڈز ہیں، اس کی لینگویج پرشین ہے اور اس میں ایک اردو کا ورڈ ہے، وہ ہے کا۔ پاکستان کا معیاری وقت کس نے تجویز کیا؟ پروفیسر محمد انور۔ پروفیسر محمد انور نے 1951 میں پاکستان کا معیاری وقت تجویز کیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر کب بنا؟ متحدہ کا ممبر۔ پاکستان میں 1947 سے لے کر 2021 تک 6 سینسز ہو چکی ہیں۔ پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی تھی اور آخری 2017 میں ہوئی تھی۔ قرارداد مقاصد کب منظور ہوئی؟ 12 مارچ 1949 کو۔ قرارداد مقاصد میں کس کو آئین کی نظریاتی اساس قرار دیا گیا؟ اسلام کو۔ قرارداد مقاصد میں اسلام کو آئین کی نظریاتی اساس قرار دیا گیا۔ پاکستان کی مقننہ کس پر مشتمل ہے؟ قومی اسمبلی اور سینٹ۔ پاکستان کی مقننہ قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے جس میں قانون سازی ہوتی ہے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی دستور ساز اسمبلی کو کب برخاست کیا؟ 1954 میں۔ دوسری دستور ساز اسمبلی کب منتخب ہوئی؟ 1955 میں۔ پاکستان نے پہلا آئین کتنے سال بعد حاصل کیا؟ 9 سال بعد۔ پاکستان نے 1956 میں تقریباً 9 سال بعد پہلا آئین حاصل کیا۔ پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا؟ 23 مارچ 1956 کو۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا اور 1958 کو معطل کر دیا گیا۔ 23 مارچ 1956 کو پہلے آئین کے تحت سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے۔ پہلا آئین کس نے پیش کیا؟ چودھری محمد علی۔ چودھری محمد علی جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے پہلا آئین بنایا اور اسے پیش کیا۔ 1956 کے آئین کے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ درجہ ذیل ہیں۔ 234 آرٹیکلز تھے، 13 پوائنٹس تھے اور 6 سکیجولز تھے۔ 1956 کے آئین میں یہ واضح کیا گیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ کنٹری نیم اسلامک پبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ یونیکیمرل لیجسلیچر تھی، یعنی کہ ایک ایوان پر مشتمل تھی۔ پارلیمنٹری سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ صدر کی عمر 40 سال اور مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ جو بھی قانون بنایا جائے گا اسے اسلامی قوانین کے تحت بنایا جائے گا۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ اردو اور بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کون سا شہر تھا؟ کراچی۔ اسلام آباد کو پاکستان کا دارالخلافہ کب بنایا گیا؟ 1960 میں۔
1960 में इस्लामाबाद कैपिटल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और रावलपिंडी को आरजी कैपिटल बनाया गया और ऑफिशियली 14 अगस्त 1967 को कैपिटल इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। मुल्क में पहला मार्शल लॉ कब लगा? 7 अक्टूबर 1958 को। पहला मार्शल लॉ किसने लगाया? सिकंदर मिर्जा, जिन्होंने 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान के पहले सदर का हल्फ उठाया था। उन्होंने 7 अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया, जिसके चंद दिन बाद अयूब खान ने मुल्क का चार्ज संभाल लिया और उन्हें फारग कर दिया। सदर अयूब खान ने मुल्क में दूसरा आइन कब नाफिज किया? 8 जून 1962 को। 1962 का आइन किसने मंसूख किया? जनरल जिया खान ने। जनरल जिया खान ने 26 मार्च 1969 को 1962 का आइन मंसूख किया और मार्शल लॉ लगा दिया। 1962 के आइन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हैं। इसके अंदर 250 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट्स थे और 3 स्केड्यूल्स थे। इसमें ये वाज़ेह किया गया कि हाकमियत अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है और ये रिटन फॉर्म में था। बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था इस आइन में। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, यानी एक ऐवान पर मुश्तमिल थी। अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो भी कानून बनाए जाएंगे वो इस्लामी कानून के तहत होंगे। जुडिशरी का काम आइन की तशरीह करना था और बंगाली और उर्दू को कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया गया। 2 जनवरी 1965 के सदारती इंतखाबात में अयूब खान का मुकाबला किसने किया? फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना जो कायद आज़म की हमशीरा थी, उन्होंने 2 जनवरी 1965 के सदारती इंतखाबात में अयूब खान का मुकाबला किया। फातिमा जिन्ना को मादरे मिल्लत का लक़ब भी दिया गया था। सदर मोहम्मद अयूब खान ने सदारत से कब इस्तीफा दिया? 25 मार्च 1969 को अयूब खान ने सदारत से इस्तीफा दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 की जंग कितने दिन तक जारी रही? 17 दिन तक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1947-48 में पहली जंग कश्मीर की वजह से हुई। मुआहिदा ताशकंद सदर अयूब खान और भारत के कौन से वजीर आजम के दरमियान हुआ? लाल बहादुर शास्त्री। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद के मुकाम पर पाकिस्तान के सदर अयूब खान और भारत के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के दरमियान अमन मुआहिदा हुआ, जिसमें यह तय पाया कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अफवाज तनाज़े से पहले के मुकाम पर वापस चले जाएंगी। दोनों अक़वाम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगी। इक़्तिसादी और सफ़ारती ताल्लुकात बहाल होंगे। दोनों रहनुमा दोनों मुमालिक के अच्छे ताल्लुकात की तामीर की सिमत में काम करेंगे। जनरल मोहम्मद याह्या खान ने कब मार्शल लॉ नाफिज किया? 26 मार्च 1969 को। जनरल याह्या खान ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर कब जारी किया? 1970 को। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत कब इंतखाबात हुए? दिसंबर 1970। दिसंबर 1970 में उस वक्त कोई आइन नहीं था, क्योंकि 1969 में आइन का मुअत्तल कर दिया गया था। जनरल मोहम्मद याह्या खान ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत इंतखाबात करवाए। 1970 के इंतखाबात में 2 मेजर पार्टीज में मुकाबला था, जिसमें मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग थी। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 86 सीटें हासिल की और शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 167 सीटें हासिल की। सीटों के तनासुब से अवामी लीग को हुकूमत बनानी चाहिए थी, लेकिन याह्या खान इसके हक में नहीं थे। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हुकूमत बनाने में मदद फराहम की, जिस पर मुल्क में इख्तलाफात पैदा हो गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इधर तुम इधर हम का नारा लगाया। इसमें अपनों की गलती और भारत की मुदाखलत की वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। सकूते ढाका कब हुआ और बांग्लादेश वजूद में आया? 16 दिसंबर 1971 में। 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। शिमला मुआहिदा कब हुआ? 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972 को भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के कैपिटल शिमला में पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के दरमियान एक अमन मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे में तय पाया कि पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम करेगा। लाइन ऑफ कंट्रोल को 17 सितंबर 1971 की सीज फायर लाइन को तस्लीम किया जाएगा। 93,000 पाकिस्तानी जंगी कैदियों को रहा किया जाएगा और रियासती मुज़ाकरात में तीसरे फरीक के शामिल न होने पर दोनों मुमालिक ने रजामंदी जाहिर की। फरवरी 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? लाहौर में। पाकिस्तान का तीसरा आइन कब मंजूर हुआ? 10 अप्रैल 1973 को।
پاکستان کے تیسرے آئین میں پہلی ترمیم 1974 میں ہوئی، جس میں پاکستان کے حدود اربع کا تعین کیا گیا۔ دوسری ترمیم 7 ستمبر 1974 کو ہوئی، جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اب تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ پاکستان کا تیسرا آئین کب نافذ ہوا؟ 14 اگست 1973 کو۔ 1973 کے آئین کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں 280 آرٹیکلز تھے اور 7 سکیڈولز تھے۔ ریٹن فارم میں تھا۔ کنٹری نیم اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا۔ پارلیمانی نظام حکومت انٹروڈیوس کروایا گیا۔ بائی کیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی یہ 2 ایوانوں پر مشتمل تھا۔ فیڈرل سسٹم تھا، یعنی ایک وفاق ہوگا، اس کے نیچے اس کے یونٹس یعنی کہ صوبے ہوں گے۔ پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ اسٹیٹ ریلیجن اسلام کو ڈکلیئر کیا گیا۔ پبلک کے لیے فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی دی گئی کہ لوگوں کو بولنے کا حق دیا جائے گا۔ امینڈمنٹ پروسیس تھا، یعنی کہ آئین کے اندر ترامیم کی جا سکتی ہیں، اور آزاد عدلیہ کی ضمانت دی گئی۔ پاکستان میں دوسرے عام انتخابات کب ہوئے؟ 7 مارچ 1977 کو۔ دوسرے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان میں تیسرا مارشل لاء کس نے لگایا؟ جنرل ضیاء الحق۔ جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں تیسرا مارشل لاء لگایا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے ملک سے مارشل لاء کب اٹھایا؟ 30 دسمبر 1985۔ 30 دسمبر 1985 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک سے مارشل لاء اٹھایا۔ جنرل محمد ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو طیارہ حادثہ میں بہاولپور کے مقام پر شہید ہو گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو کب پھانسی دی گئی؟ 4 اپریل 1979 کو۔ پاکستان غیر وابستہ تحریک یعنی کہ نان الائن موومنٹ کا ممبر کب بنا؟ 1979 میں۔ پاکستان میں زکوٰۃ کا نظام کب نافذ ہوا؟ 1980 میں۔ پاکستان میں کب غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے گئے؟ 1985 میں۔ 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے اور کس کی حکومت قائم ہوئی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ 1988 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ 1990 کے انتخابات میں کون وزیر اعظم بنا؟ نواز شریف۔ 1993 کے انتخابات کے نتیجے میں کون وزیر اعظم بنا اور سردار فاروق لغاری صدر بنے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو۔ 1993 کے انتخابات کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور سردار فاروق لغاری صدر بنے۔ فروری 1997 کے عام انتخابات میں کس پارٹی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی؟ مسلم لیگ نواز نے 1997 کے انتخابات میں بھاری اکثریت حاصل کی اور نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کی حکومت کا تختہ کس نے الٹ دیا؟ جنرل پرویز مشرف نے۔ کارگل کی جنگ کب لڑی گئی؟ 1999 میں۔ 12ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے اور کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ 10 اکتوبر 2002۔ 10 اکتوبر 2002 میں 12ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات ہوئے اور مسلم لیگ کاف نے اکثریت حاصل کی اور میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے۔ میر ظفر اللہ جمالی کے بعد چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے اور ان کے بعد شوکت عزیز ملک کے وزیر اعظم بنے۔ پرویز مشرف نے ملک میں کب ایمرجنسی لگائی اور آئین کو معطل کر دیا؟ 3 نومبر 2007 میں۔ 13ویں دستور ساز اسمبلی کے لیے انتخابات کب ہوئے؟ 18 فروری 2008 میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور 2013 کے عام انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بنے اور صدر ممنون حسین بنے۔ 2013 کے عام انتخابات میں جب نواز شریف نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ملک میں دہشت گردی عروج پر تھی، تو دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے لیے پاک فوج نے 15 جون 2014 کو آپریشن ضرب عضب شروع کیا۔ سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کا سانحہ کب پیش آیا؟ 16 دسمبر 2014 میں۔ 16 دسمبر 2014 میں دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول پشاور پر حملہ کر دیا جس میں 100 سے زائد بچے شہید ہو گئے۔ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان قومی اسمبلی سے کب منظور ہوا؟ 24 دسمبر 2014 میں۔ سانحہ آرمی پبلک سکول پشاور کے بعد دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کے لیے 24 دسمبر 2014 کو 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان قومی اسمبلی سے منظور ہوا۔
15वीं दस्तूर साज असम्बली के लिए इंतखाबात कब हुए? 2018 में। 2018 के आम इंतखाबात में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन इसने MQM, मुस्लिम लीग काफ, JDA और कुछ और जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, जिसमें वजीर आज़म इमरान खान बने और सदर डॉक्टर आरफ अलवी बने। ऐवान बाला सेनेट में कितनी नशिस्तें हैं? 100। सेनेट के अरकान की मुद्दत 6 साल होती है। आधे सेनेटर्स 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और नए इलेक्शन होते हैं। आधे सेनेटर्स अगले 3 साल बाद रिटायर होते हैं, जिसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं और नए अरकान मुंतखब होते हैं। मौजूदा सेनेट के जो अरकान हैं 2021 के इलेक्शन के बाद उसमें अरकान की तादाद 100 है। इससे पहले सेनेट में नशिस्तों की तादाद 104 थी। फाटा के KPK में जम होने के बाद फाटा की 8 नशिस्तें खत्म हो गई। 4 सेनेटर उनकी रिटायर हो गए और 4 रह गए हैं, इस वजह से तादाद 100 है। 25वीं आईनी तरमीम के बाद सेनेट की नशिस्तों की तादाद कितनी हो गई है? 96। 25वीं आईनी तरमीम के बाद फाटा को KPK में जम कर दिया गया है। फाटा की 8 नशिस्तें खत्म कर दी गई हैं। 4 सेनेटर्स उनके रिटायर हो गए और 4 रह गए हैं, इस वजह से सेनेट की मौजूदा अरकान की तादाद 100 है और 2024 के बाद सेनेट के अरकान की तादाद 96 हो जाएगी। सेनेट के मौजूदा अरकान की तरतीब कुछ इस तरह से है। चारों सूबों से 23 अरकान है। इस्लामाबाद कैपिटल से 4 अरकान है और फाटा में से भी 4 अरकान है। फाटा के 8 अरकान से जिनमें से 4 2021 में रिटायर हो गए हैं और इस पर दोबारा इंतखाबात नहीं हुए, और जो बकाया 4 हैं वो भी 2024 में रिटायर हो जाएंगे। और 25वीं आईनी तरमीम के बाद 2024 में सेनेट के अरकान की तरतीब कुछ इस तरह से होगी। हर सूबे से 23 अरकान होंगे और इस्लामाबाद कैपिटल से 4 अरकान होंगे और टोटल 96 सेनेटर्स होंगे सेनेट में। ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है? 342। 25वीं आईनी तरमीम के बाद कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद कितनी हो गई है? 336। 25वीं आईनी तरमीम के बाद यानी कि फाटा को KPK में जम कर दिया गया है और इसकी नशिस्तें भी KPK में जम कर दी गई हैं और इसके बाद कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 342 से कम होकर 336 हो गई है। कौमी असम्बली की मौजूदा नशिस्तों की तरतीब कुछ इस तरह से है। पंजाब से 183 मेंबर्स हैं, सिंध से 75, KPK से 43, बलूचिस्तान से 17, फाटा से 12 अरकान हैं और फेडरल कैपिटल से 2 मेंबर्स हैं और टोटल 342 कैंडिडेट्स हैं। और 25वीं आईनी तरमीम के बाद जो कि मई 2018 में हुई है उसमें सीटों की तरतीब कुछ इस तरह से है। पंजाब की सीटें कम होकर 173 हो गई हैं, सिंध की सेम है 75, KPK की अरकान की तादाद 43 से 55 हो गई है, बलूचिस्तान के अरकान की तादाद 20 हो गई है, फेडरल कैपिटल की भी एक सीट इंक्रीज हो गई है और टोटल सीट्स 336 हो गई हैं। और इन दोनों का कंपैरिजन है 25वीं आईनी तरमीम से पहले और बाद का, ये आप देख सकते हैं। पंजाब असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं? 371। सिंध असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं? बलूचिस्तान असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं? 65। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं? 145। 25वीं आईनी तरमीम के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्तें 124 से बढ़कर 145 हो गई हैं और इन पर इंतखाबात भी मुकम्मल हो गए हैं। मौजूदा सूबाई असम्बलियों में नशिस्तों की तरतीब कुछ इस तरह से है। बलूचिस्तान असम्बली की 65 सीट्स हैं, KPK की 145, पंजाब की 371, सिंध असम्बली की 168 सीट्स हैं। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत 5 साल होती है और हर 5 साल बाद नए इलेक्शन होते हैं और नई हुकूमत बनती है। कौन कानून साजी का काम करती है? मुकन्नना यानी कि पार्लियामेंट, जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट शामिल हैं, ये कानून साजी का काम करते हैं। मुकन्नना के बनाए हुए कवानीन को कौन लागू करती है? इंतजामिया। वफाक की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सूबे की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? हाई कोर्ट। पाकिस्तान में मुल्क का सरबराह कौन है? सदर। पाकिस्तान में इंतजामिया का सरबराह कौन है? सूबे का इंतजामी सरबराह कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी। गवर्नर का सदर दफ्तर कहाँ होता है? सूबाई दारुल हुकूमत। पाकिस्तान में सूबे का सरबराह कौन है? गवर्नर। पाकिस्तान में सूबे की इंतजामिया का सरबराह कौन होता है? वजीर आला। पाकिस्तान का मौजूदा ढांचा किस दस्तूर के तहत काम कर रहा है?
1973 के आइन के तहत पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की कितनी नशिस्तें हैं? 33। गिलगित बल्तिस्तान की तीसरी कानून साज असेंबली के लिए इंतखाबात कब हुए? 15 नवंबर 2020। 15 नवंबर 2020 में गिलगित बल्तिस्तान की तीसरी कानून साज असेंबली के इंतखाबात हुए और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असेंबली में नशिस्तों की तरतीब कुछ इस तरह से है। इसमें जनरल नशिस्तों की तादाद 24 है, वुमेन के लिए 6 सीटें और टेक्नोक्रेट के लिए 3 सीटें मुख्तलिफ हैं और टोटल 33 सीटें हैं। आजाद जम्मू कश्मीर असेंबली की कितनी नशिस्तें हैं? 53। 2021 जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली इलेक्शन में किस पार्टी ने अक्सरियत हासिल की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 जुलाई 2021 को जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल की। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में नशिस्तों की तरतीब कुछ इस तरह से है। जनरल नशिस्तों की तादाद 45 है, वुमेन अरकान की तादाद 5 है, टेक्नोक्रेट, उलमा और एजेके नेशनल रिजाइडिंग अब्रॉड मेंबर्स की एक सीट है। टोटल 53 सीट्स हैं। पाक आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर GHQ किस शहर में वाक़ है? रावलपिंडी में। योम दिफा कब मनाया जाता है? 6 सितंबर। 6 सितंबर 1965 को भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, जिस पर पाकिस्तान के अफवाज और अवाम ने अपना भरपूर तरीके से दिफा किया और हर साल 6 सितंबर को योम दिफा के तौर पर मनाया जाता है। पाक फजाइया का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? इस्लामाबाद में। पाक फजाइया का दिन कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? इस्लामाबाद में। पाकिस्तान नेवी का दिन कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। योम पाकिस्तान कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च 1940 के दिन लाहौर के मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान पेश की और हर साल 23 मार्च को योम पाकिस्तान के दिन के तौर पर मनाया जाता है। सरप्राइज डे कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। फरवरी 2019 में भारत ने पाकिस्तान के शहर बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की, जिसके जवाब में 27 फरवरी 2019 को पाक फजाइया ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के 2 मिग तैयारों को गिराया और उनके एक पायलट को गिरफ्तार भी कर लिया और हर साल 27 फरवरी को सरप्राइज डे के तौर पर मनाया जाता है। योम कश्मीर कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को। हर साल 5 फरवरी को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर योम कश्मीर मनाया जाता है। योम तकबीर कब मनाया जाता है? 28 मई। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की क़ियादत और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की अनथक मेहनत की वजह से भारत के एटमी हमलों के जवाब में जागी के मुकाम पर 5 एटमी धमाके किए, जिसकी वजह से हर साल 28 मई को योम तकबीर मनाया जाता है। एटमी धमाकों की वजह से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मोहसिन पाकिस्तान के तौर पर भी याद किया जाता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।